Assalamu alaikum students. Dr. Farhan Jum is here. This is our lecture number 5. In this lecture we will study about the potential energy and electric potential energy. First of all we should know about the potential energy. As we know that the potential energy is the energy which results from position or configurations. The SI unit of energy is the joule, which is equal to Newton meter. In accordance with the basic definition of energy is the capacity of doing work, that is force into displacement. So for force we have the unit Newton, and for displacement we have the unit meter. So an object may have capacity of doing work as a result of its position in a gravitational field, in which it is called the gravitational potential energy, and or in electric field, in which where we have the electric potential energy, or in a magnetic field where it is called the magnetic potential energy, or may have the term elastic potential energy in case of stretched spring or other elastic deformation. First of all, we should have some knowledge about the electric work and energy. For example, we have a region uh, of B point where have positive charges, and A point where is have negative charges. Force K direction is force have the direction from positive to negative charge, and we are working against an electric field QE. So when an external force F moves positive Q charge from point A, which have negative charges, from point A to negative B in this electric field. So the electric force is QE against the electric force QE. The work is F, force into displacement. So we can say it as QED. And from a level B, the potential energy U is QED. So the electric field does negative work here, and external force does the positive work. So electric potential energy EP can be defined as stored energy. It will store energy into this charge at point B due to attractive or repulsive forces of charged particles and their relative distances. Uh, what happens when we move a negative charge against E from point A to B? Work done is equal to QED, but at point A, potential U is QED because no external force is required to move this minus Q charge to that point B, because positive charges and negative charges have the force of attraction. So in this case, electric work for field does positive work on minus q, decreasing the potential energy, means A से B पॉइंट तक जाने से उसकी सारी potential energy decrease हो जाएगी. Or if it release from B, then nothing happen. So what is the relation between the work and potential energy? We know the formula F is equal to Ft. So we have to we know about the two forces, gravitational force and electric force. In case of gravity, क्या होता है कि अगर कोई हम ब्रिक को रेस करें फ्रॉम पॉइंट ए टू फ्रॉम पॉइंट बी, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड mg, और अगर हम इसको यहाँ पे इतनी हाइट पर रेस कर लें तो इसका वर्क डन क्या होगा अगेंस्ट अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज माइनस mgh, but it have the change in potential energy is positive mgh. Similarly, charge moved between the region x and y from left, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है, लेफ्ट की तरफ है. ठीक है, फोर्स किस तरफ एक्ट कर रही है, लेफ्ट की तरफ. फोर्स का फार्मूला इस केस में क्या है, QE. तो वर्क डन इस केस में क्या है, माइनस QED.
ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज है और इसको हम एक्स टू वाई मूव कर रहे हैं अगेंस्ट द in the direction of against फोर्स। तो यहाँ पे इसमें पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव QED होगी। ठीक है, पॉजिटिव यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन का अगर हम यहाँ से इन दोनों का कंपैरिजन देखें तो सिमिलर है बेस्ड ऑन दिस फार्मूला। ठीक है, so now come to the topic, that is the potential energy. We know that from this discussion we know that the difference of gravitational potential energy between the 2 points is equal to the negative of the work done by the force, that is change in potential energy is equal to minus WAB. Also we know that the WAB and for work done between the 2 points AB is equal to वर्क डन बिटवीन द इंटीग्रेशन यहाँ पे हम शो करेंगे। इंटीग्रेशन से फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ds स्मॉल डिस्टेंस जितना भी उसने ट्रैवल किया है मोस्टली पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं एफ डॉट ds के बराबर। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये पॉइंट भी है, अगर फोर्स इज कंजर्वेटिव है तो ये इक्वेशन फुलफिल करेगी, जैसा कि इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटी दोनों कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। तो कंपेयर करते हैं दोनों इक्वेशंस को, सो वी गेट दिस इक्वेशन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन a टू b f डॉट ds। तो ये इक्वेशन बड़ी फंडामेंटल है और ये हम आगे आगे सारे टॉपिक्स में मोस्टली ये यूज़ हो रही है, तो ये आप इसको चेक कर लें कि इंटीग्रेशन माइनस a टू b f डॉट ds इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो सब यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट के लिए कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में ये स्लाइड है कि कंजर्वेटिव फोर्स में बी डिफाइंड एज वन ऑफ विच फॉर विच द वर्क डन इन मूविंग बिटवीन द 2 पॉइंट्स A एंड B इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन बाय बिटवीन द 2 पॉइंट्स। मे बी यानी A से भी आप इधर से भी चले जाएं, A से भी ऐसे भी चले जाएं या ऐसे भी चले जाएं, तो वर्क डन इस केस में और फिर वापस B टू A आए तो वर्क डन इस केस में क्या है, 0 है। The same amount of work done required होगी from all the paths from reaching the point from A to B. So लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक और भी है कि इम्प्लीकेशन को हम यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं कि ठीक है, यहाँ पे तो ये कंजर्वेटिव अगर फोर्स है यानी फोर्स इज कंजर्वेटिव, हम ग्रेविटेशन फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पार्ट ट्रेवल कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं, तो लेकिन यहाँ से ये भी है कि ये डिपेंड करता है पाथ पे, तो चलो ये नहीं करता, लेकिन डिपेंडेंट ऑन इट्स पोजीशन। सो वी कैन डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन विच डिपेंड ऑन द पोजीशन। सो दिस इज द कंजर्वेटिव फोर्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। As we know, the gravitational force and electrostatic force is conservative. So we can associate जो भी हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी से रिलेशनशिप जो सॉल्व किया है कि वो हम एनी सिस्टम के साथ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स हो। चार्ज सिस्टम में भी हम यूज़ कर सकते हैं, in which a charged particle is placed in an electric field and acting on by electrostatic force. But then the change in potential energy E when a particle of charge Q moves in an electric field E, it is acted upon by the electric force F is equal to QE। ये भी हमें इक्वेशन का पता है, तो यहाँ पे ये एक चेंज इन या इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है चार्ज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन केस ऑफ चार्ज माइनस A टू B F डॉट ds, या यहाँ पे F की वैल्यू QE हम पुट कर दें तो माइनस Q A टू B इंटीग्रेशन A टू A वेक्टर डॉट ds वेक्टर। सो ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये भी हम आगे अपने टॉपिक्स में यूज़ करेंगे। नाउ कम टू दिस फिगर। ये अब इसमें दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, बोथ आर लाई एट ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही हम Q2 चार्ज को मूव करवा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है
अलोंग एक्स एक्सिस। ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ लेके जा रहे हैं। यहाँ पे कोई इंस्टेंट डी एस पे रेडियस है या इसकी डिस्टेंस आर है। ए पॉइंट पे आर ए है और आर बी जिस पॉइंट पे इसने जाना है फ्रॉम ए टू बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 इज आर पी। तो यहाँ पे हम ये फार्मूला हमें पता है F इज इक्वल टू क्यू, तो F ये एक्स निकाल सकते हैं। ये यहाँ पे 2 बार रेज कर देते हैं तो F ओवर Q2 होगा। तो ये हम इसके अंदर F कूलम फोर्स है, कूलम फोर्स का फार्मूला भी पुट करते हैं। तो हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है दिस वन। ठीक है, ये यहाँ से ये Q2 के साथ में कलेक्ट हो गया, तो ये बाकी यही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 एट Q2 इज Ex इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ओवर R स्क्वायर। So if we move Q2 from RA to RB, the change in potential energy कितनी होगी कि UB at point B फाइनल पॉइंट से माइनस कर देंगे पोटेंशियल एनर्जी UA इज इक्वल टू, ठीक है। ये देखें, ये वाला ही फार्मूला हम प्रीवियस ये वाला फार्मूला अब यूज़ करने लगे हैं कि माइनस क्यू टू, ये देखें ये ई एक्स यहाँ से भी ले सकते हैं कि एफ डॉट डी एस था ना, एफ डॉट डी एस की जगह हमने ये पुट कर दिया माइनस क्यू एट Q2 ई एक्स डॉट डी आर, स्मॉल डिस्टेंस डी आर। ठीक है, तो यहाँ पे जो डी एस है उसको हमने रिप्लेस किया है डी आर, बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट इज इन डायरेक्शन ऑफ द आर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आर की डायरेक्शन में ही आ रही है। सो नाउ नेक्स्ट, फिर इसको हम Q1, अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे ये पुट की है। ठीक है, एक्स की हमने पहले ही डिफाइन कर दिया था किसके इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट्स हैं Q1 चार्जेस, उनको हमने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से। दिस इज द इंटीग्रेशन जिसको हमने नेक्स्ट सॉल्व करना है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 1/RB माइनस 1/RA। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये देखें इंटीग्रेशन RA RB R -2 हो जाएगा। और फिर अगर हम इसको सोल्यूशन की तरफ जाते हैं तो ये R -2 की पावर +1 और -2 की पावर +1 को हम सॉल्व करते हैं। और नेक्स्ट फिर इसको आप ये ऐसे इसी तरह की इंटीग्रेशन आगे भी टॉपिक में आएगी, नेक्स्ट लेक्चर में आप देख लेंगे। तो मिक्स मज़ीद इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो दिस इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है। तो is valid whether the motion of Q2 is toward or away from the Q1। अभी ये away from the Q1 है, तो अगर ये Q2 is moved toward Q1 हो, अगर ये Q2 move toward Q1 हो तो उस केस में क्या है, फॉर एग्जाम्पल B पॉइंट से ये Q1 की तरफ जा रहा है तो ये R A हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे ये R क्या हो जाएगा B। उस केस में ये हमारा A पॉइंट हो जाएगा और ये B पॉइंट पे जा रहा है, तो इस केस में ये आर ए इज ग्रेटर देन आर बी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर देन 0 होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी, विच मीन्स दैट द पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज इफ द चार्ज मूव्स क्लोजर टू द टुगेदर। सो नेक्स्ट केस है, अगर Q2 मूव, जो कि हमने भी सॉल्व किया है, मूव अवे फ्रॉम द Q1, यानी कि यही केस है। इस केस में क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी लेस देन 0 है, डिक्रीज होती है, पोटेंशियल डिक्रीजेस इफ द चार्जेस मूव फर्दर अपार्ट। अब नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन 1 उस केस में भी है कि वेदर द साइंस ऑफ द चार्जेस आर पॉजिटिव नेगेटिव, मीन्स अगर ये पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव भी हो सकता है। तो if the charges have opposite signs then the force is attractive and force vector is in opposite direction। तो हम उसको भी सॉल्व करें तो हम फाइनल इसी सोल्यूशन की तरफ आएंगे और इंटीग्रेशन विल गिव द सेम वैल्यू।
हाँ, इस केस में क्या होगा कि ये लेस देन अपना एनर्जी होगी जब मूव क्लोजर टू कहता है, ठीक है, इससे अपोजिट होगी। और अपना एनर्जी ग्रेटर देन जीरो होगी व्हेन चार्ज इज फर्दर अपार्ट, ये चेंज होगा, ठीक है। तो लेट अस चूज अ रेफरेंस पॉइंट ए एट इन्फिनिटी, यानी कि फॉर एग्जांपल ये देखें, ये पॉजिटिव चार्ज है, उसका कुछ रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये कोई जो हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं ए पॉइंट, वहाँ से ये मूव कर रहा है और इस फील्ड की तरफ आ रहा है, तो ये इन्फिनिटी ले लेते हैं ए पॉइंट, और कोई यहाँ पे बी पॉइंट की तरफ आ रहा है चार्ज कोई और, तो उस केस में क्या है, ये जो है आर ए जो बनता है डिस्टेंस, ये आर ए, उसको हम ले लेते हैं इन्फिनिटी है, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, रेफरेंस पोटेंशियल ज़ीरो है। फिर जैसे जैसे चार्ज यहाँ से मूव करेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो और उस केस में क्या होगा कि जब ये आर ए इन्फिनिटी है तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा इक्वेशन नंबर 1 का, मीन्स इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास ही 1/RB माइनस 1/RA भी यहाँ पे था, तो उसको यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 1/RB माइनस 1/RA भी था, उसमें ये टर्म नेग्लेक्ट हुई, तो ये जो आर बी है वो आर ही है, तो ये यहाँ पे पुट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 में। तो ये हमारे पास ये जो इक्वेशन है, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यू आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर। तो दिस इज आवर लेक्चर, होप सो आपको समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।